Hello students, let's start with the next doctrine of territorial nexus. So those of you who are watching this video for the first time, we are having this series of videos to cover all the new chapters which have been added in the 7th edition of the book Indian Polity by M. Lakshmikant. We have already covered few doctrines so far. The next in sequence is doctrine of territorial nexus. Interesting concept, and I again request you all to have your notebooks and pen with you to take down the notes simultaneously. You can pause the video if you want, if the speed is not as per the speed of your handwriting. Okay. Uh, you all know we are a federal country. So, part 11 of the Indian Constitution talks about the union state relationship. Now, this part has an article, Article 245, which talks about the territorial jurisdiction power of the union legislature, that means parliament, and the state legislatures. Now, I'm sure you all know very well that the parliament can make laws on certain matters. The state legislatures can make laws on certain matters. Which matters? I'm sure you all know very well. Parliament can make laws on the subjects of union list and concurrent list. And these lists are given in the 7th schedule of the Indian Constitution. Similarly, all the state legislatures can make laws on subjects of state list and the concurrent list. Again, given where? In the 7th schedule. The question is, whatever laws are made by parliament and state legislatures, in which territorial area or which territorial jurisdiction or let's say land area are they applicable? Now, parliamentary laws, you all would say that they are applicable throughout the country. Same way, the laws of state legislatures are applicable throughout the territory of state. So let's say if Madhya Pradesh MP makes a law, तो वो लॉ एमपी के एरिया में ही लागू होगा, एमपी के बाहर लागू नहीं होगा, राइट, विद इन द टेरिटरी. बट हियर हमें एक चीज़ समझनी है जो गिवन है आर्टिकल 245 में, वो है समथिंग कॉल्ड एज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन. Extra territorial means outside the territory. Now, parliamentary laws, no doubt, are applicable throughout the territory of India, but they are also applicable even outside the territory of India. That means Parliament has the power to make laws with extraterritorial operation. But do the state legislatures have this power? Can they make laws which are ऑपरेशनल और वैलिड इवन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ स्टेट? तो क्या मध्य प्रदेश का एक कानून बिहार में लागू हो सकता है, गुजरात में लागू हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं हो सकता. तो इन जनरल रिमेंबर दैट स्टेट्स डू नॉट हैव द पावर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वही है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस. और वो क्या, वो ये समझते हैं. तो मान लीजिए ये एक स्टेट है कोई, और उस स्टेट की लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो वो लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? सिर्फ इस स्टेट की टेरिटरी के अंदर, जो लोग इस टेरिटरी के अंदर हैं, जो लैंड इसके अंदर है. लेकिन मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंपनी हो सकती है, जो टेरिटरी से तो बाहर है, जो इस स्टेट की टेरिटरी से तो बाहर है, लेकिन उसका एक नेक्सस है, उसका एक रिलेशनशिप है विद द स्टेट. और ये जो रिलेशनशिप है और जो ये नेक्सस है, ये रियल होना चाहिए, ये सब्सटैंटिव होना चाहिए, मतलब उसकी कुछ वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंस सब्सटैंटिव होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इल्यूजनरी. मतलब अगर रियल है तो इसका मतलब वो इल्यूजनरी नहीं है, वाकई एग्जिस्ट करता है. तो फिर उस रीज़न से डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहती है कि उस केस में इस स्टेट का लॉ इस पर्सन या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. लेट्स सी इट बाय एन एग्जाम्पल. गुजरात ने एक लॉ बनाया जिसका नाम था गुजरात लैंड, गुजरात, सॉरी, लेट मी राइट अगेन. गुजरात लैंड
ceiling. Gujarat Land, let me write here, Land Ceiling Act 1960. ओके, तो इस एक्ट के हिसाब से एक इंडिविजुअल की जो लैंड ओनिंग की लिमिट थी उसके ऊपर एक लिमिट तय की गई, एक सीलिंग तय की गई। तो मान लीजिए अगर ये गुजरात स्टेट है तो इस स्टेट में कोई आदमी कितना एग्रीकल्चरल लैंड, गुजरात एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें एक वर्ड और है एग्रीकल्चरल लैंड, कि एक एग्रीकल्चरल लैंड जो है एक आदमी कितनी लैंड होल्ड कर सकता है उसकी एक सीलिंग है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, उसकी कुछ लैंड है गुजरात स्टेट में, तो उसकी लैंड की एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति की स्टेट से बाहर भी कोई एग्रीकल्चर लैंड की ओनरशिप है, तो जब हम गुजरात स्टेट में इस लॉ को अप्लाई करेंगे और उसकी लैंड देखेंगे कि हाउ मच लैंड दिस पर्सन ओन्स, तो क्या इस बाहर वाली लैंड को हम काउंट करेंगे? हालांकि ये स्टेट से तो बाहर है और ये एक्ट स्टेट से बाहर लागू नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, यहाँ पे ये लागू हो सकता है। तो ऐसा कोई लैंड, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई ट्रस्ट जिसका एक रीजनेबल कनेक्शन है विद द स्टेट, then the state's law can be applicable even outside the territory of the state. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेशली यूज होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टैक्स लॉज, कि कोई आदमी बिजनेस एक जगह कर रहा है लेकिन वो बिजनेस फिर दूसरी जगह पे भी आप कहीं से खरीद रहा है, कहीं सेल कर रहा है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक स्टेट में हो रही है, सेलिंग कहीं और स्टेट में हो रही है, तो उस केस में जो लॉ है ये स्टेट से बाहर भी एप्लीकेबल हो सकता है। दिस इज वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल nexus. So remember, this doctrine is actually an exception on the state's power, that the states cannot make laws which have extraterritorial operation. But states' laws may have extraterritorial operation if the laws have a reasonable connection, a nexus with an object or a person outside the state. So I hope this concept is now clear to all of you. Thank you. Keep studying.